So we started with the definition of function, right? And I will just revise few things. What a function is actually. A function is nothing but it's a relation actually from set A to set B, right? But it has two restrictions. The two restrictions are that each element of A must be associated to some element of B. It means that it should not be like that there is some element of A which is not connected to an element of B. Every element of the set capital A which exists on the left hand side actually, if you see the picture of a function, then the set appearing in the left hand side, all the elements of set A must have some image in set B, right? So this is the first condition, right? Okay. Now the second condition is that there should not be any element of set A which is associated to more than two or more elements of B, or you can say more than one element of B, right? It's not true that an element of capital A is having two images, right? So if I give you a mathematical example, then if the function, if I give you fx is equal to uh, square root of x plus minus under root x, then this is not a function, because if you input x is equal to 4 here, then you will be getting two outputs, plus minus 2. So that's why it cannot be a function, right? So you can see, just see that this is fx is equal to plus minus square root of x. So this is not a function. This is not a function because for one input it will give you two answers. If you put x equal to 4, you will be getting plus minus 2. So this is not a function. In order to convert this thing, this is a relation. In fact, this is a relation, right? Though we have written fx here, but still it's a relation. Relation doesn't have any restriction on it, right? Now if you want to convert it into a function, then there are two possibilities. Either you just write fx is equal to a square root of x, which actually means that this is a positive square root. Whenever there is nothing written here, I mean there is absence of symbol, then we consider that it's a positive square root, and in that case it is a well-defined function, provided this x is a positive. You can't still put to negative x, right? Otherwise it will not be a function from real to real, right? Or you can just place a minus sign here, then it will be a negative square root function, right? And again that will be a well-defined function, right? So there is a difference between a relation and a function. If somebody asks you that fx is equal to square root of x, then of course that's a function from positive real numbers to r, right? But if someone asks you that fx is equal to plus minus square root of x, is it a function? Then you will say, sorry, it's not a function, because for one input, like x is equal to 9, x is equal to 16, it will give exactly two outputs, and that is actually the violation of this second number condition. Are you getting my point? Please say yes if you got this, the difference between a relation and a function, right? If something is not a function, then it has to be a relation. It's not like that it is nothing. ये नहीं आप कहेंगे, अगर मैं आपको कुछ भी लिख के दे देता हूँ तो वो कहीं ना कहीं तो आएगा ही, right? Okay, fine. Now we saw some examples, and these thank you Ishika Punani, okay, thank you. And these were a few examples which actually differentiated between a relation and function. You can see that the R1 and R2 are not a function due to the fact that in R1 there is no element which of B which is associated to an element is little a, because little a doesn't have any image here, so that's why it's not a relation. Similarly in R2 you can see that C is not associated to some element of capital B, that's why it's not a relation, it's not a function, right? And R3 R4 and R5, they all satisfy the criteria of a function, right? And then we talked about domain and range. Domain is actually nothing but it is a set of inputs. The set of inputs is called domain, right? The set of outputs, that's called range. But range is different from codomain, though range always lies inside the codomain, right? So codomain is, what's codomain? Codomain is a set of is a set from which the outputs are selected. Actually, you can say that this is the codomain, this is domain, right? So range is something which is the output given by the function, and that will be always inside this set, something inside this set. Range may be equal to 1,
Range may be equal to 2 or range may be equal to 3, or it's possible that the range may be 1 comma 2, range may be 2 comma 3, range may be 1 comma 3, or it's possible that range is equal to capital B, right? So there are possibilities that range is either less than B or it is exactly equal to B. So that's why this formula is very crucial. It says that the range set F is always a subset. You know that this is symbol of subset, and it opens the possibility that either it is less than codomain, or sometimes it may be equal to codomain of F, right? Now, then the second remark talks about the one function. The one function, injection, injective, right? Because injection is something which a doctor uses one for one injection for one person. Then after injecting, he disposes it. Injection आप जानते हैं कि उसको dispose कर दिया जाता है, दोबारा नहीं लगाया जाता है, right? So injection is something like that. And if a function is not one, then it's many one function, right? So mathematically, if you see this graph, this is a graph of function fx is equal to x, a straight line making an angle of 45 degree with the positive direction of x-axis, right? So it's a one function. If you give one value of x here, then you will be of course getting a unique output. There are no two values of x for which you can get this same output. Not possible. If you put 2, the answer will be 2. If you input -2, the output will be -2. So for different inputs, you are getting different outputs. That's why it's a one function, right? And there's a geometric criteria actually, which you can always use in order to verify that a function is one or not one, and that says that each horizontal line cuts the graph, the red color graph, at most 1 point, right? So if you draw a horizontal line, and every horizontal line cuts the graph either at no point or at exactly 1 point, then we say that yes, it's a one function. So you can see that if I draw a few lines like this, 1, so you see that the point of intersection is 1. If again draw a line like this, then again it is intersecting at 1 point, right? So there's no line which can intersect this red colored graph in more than 1 points, right? And this is an example of a man-even function. You can see that there exist lines like this which cuts this more than 2 points. You can see that more than 1 point, sorry, that this line is cutting this graph at 2 points. So this function cannot be one, and if it is not one, then it has to be man-even. So you can say that one and many-one are opposite to each other, because many-one is nothing but many-one means not one. So whatever is not one, that becomes many-one, right? It means that if a number is greater than 1, then it comes in the category of many. So if you see two people walking in the street, you can say that, mom, I have seen many people walking in the street, because 2 is considered many in mathematics, right? So that's why something which is not one, that is always many one, right? मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे. अंग्रेजी और मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा गैप है लॉजिक्स में. मैनी वर्ड जल्दी से आप यूज नहीं करते. अगर आप कहेंगे आई हैव सीन मैनी मंकीज, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 2 मंकी देखे होंगे, क्योंकि 2 मंकी को देखने के बाद ये नहीं कह सकते कि मैंने मैनी देखे हैं. या यूं भी कहते हैं कई लोग कि हमने दुनिया बहुत देखी है. तो बहुत का मतलब शायद मैनी होती, बहुत दुनिया देखी है तो इसका मतलब बहुत लोग देखे हैं. लेकिन मैथमेटिक्स में जो मैनी है वो एक से ज्यादा को मैनी बोल रहे हैं, इसीलिए शायद इसको मैनी वन कहते हैं. एक से ज्यादा पॉइंट पे काटेगा तो मैनी वन, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स, और ये बड़े खतरनाक होते हैं. लॉजिक्स में ये चीज होती है. मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऑपोजिट ऑफ ब्लैक, ये मैंने पहले भी पूछा है और सबने इसका सही आंसर बताया है, इंक्लूडिंग गुरमनप्रीत अरोड़ा. ऑपोजिट ऑफ ब्लैक. हाँ, अपोजिट बता दो ब्लैक का. ब्लैक का ऑपोजिट नहीं पता. गर्ल का अपोजिट. बॉय. अच्छा, ब्लैक का ऑपोजिट वाइट. ब्लैक का अपोजिट वाइट जो है वो झूठ है, गलत है. मैथ्स का स्टूडेंट नहीं बोलता है ब्लैक का अपोजिट वाइट. ब्लैक का अपोजिट तो होता है नॉट ब्लैक, जो ब्लैक ना हो. अच्छा. तो नॉट ब्लैक तो रेड भी हो सकता है. क्यों? ओके. ठीक है. और गर्ल का अपोजिट नॉट गर्ल. नॉट गर्ल. ठीक है, बस यही है. मैथमेटिक्स में ऐसे ही होता है. वन का अपोजिट
not one, नॉट वन, और नॉट वन का मतलब मैनी वन। many one. ठीक, मैनी वन मतलब एक से ज़्यादा हो गया तो मैनी बोल देते हैं उसको। ठीक है, मैथ्स में ऐसे होता है। Yes, sir. चलो ठीक है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले में। थर्ड, ओ सॉरी, ये वाले में, राइट, दिस वन। Yeah, this is an example of greatest integer function, and you can see that for any integer, if you put any integer between 0 to I mean any integer between 0 to 1, but if you exclude 1 नहीं रखना है आपको, you put any integer, not integer, just any real number, जब सपोज आप 0 रखेंगे then 0 का आंसर ये देगा 0। इनफैक्ट आप 0.5 रखेंगे उसका भी आंसर ये 0 देता है, 0.9 रखेंगे तो भी आंसर 0 देता है। इसका मतलब होता है कि दिस विल गिव एन आउटपुट which will always be lesser than the one of the integer between which this x lies actually. Suppose you are giving input 2.5, अगर x को आप 2.5 रखें तो 2.5 actually lies between 2 and 3, two integers 2 and 3, 2 और 3 के बीच में लाई करता है। 2 और 3 में से छोटा कौन सा है, जो छोटा है वही आंसर आता है, तो इसका आंसर आएगा 2, राइट। सपोज यू गिव इनपुट माइनस ऑफ 2.9, नाउ गुरमनप्रीत अरोड़ा प्लीज स्विच ऑन योर माइक। माइनस ऑफ 2.9, और हमें इसका आंसर बताना है। इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सुना होगा आपने इसके बारे में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में कभी पहले सुना है जिंदगी में? ठीक है, Minus तो ये माइनस 2.9 किस किस के बीच में आता है? -2 and -3. उनमें से छोटा कौन सा है? -3. -3 छोटा है, तो इसका आंसर आ गया -3। ठीक है, तो ये वो फंक्शन होता है। और अगर मैं -2.9 रखता हूँ तो भी -3 आएगा आंसर, अगर -2.8 रखता तो भी तो आंसर सेम आता, कुछ अलग आता? सेम ही आता था। सेम आता। तो ये 1 1 फंक्शन की पहचान है, मैनी वन की पहचान है? ये 1 1 की। क्यों 1 1 की कैसे है? इतने सारे दो वन नंबर तो बता दिए मैंने जिनका आंसर एक आ रहा है, मैनी वन नहीं हो रहा है। मैनी, मैनी वन का मतलब होता है मैनी अच्छा सर, डैश ये वन, ये इनपुट होते हैं, और ये वन का मतलब आउटपुट। ये डैश का मतलब ये इधर वाला इनपुट दिखाता है, इधर वाला आउटपुट। तो बहुत सारे इनपुट के लिए एक ही आउटपुट तो आ रहा। -2.9 रख के भी वही आंसर आ रहा, -2.8 से भी वही आ रहा। तो मैनी वन होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए? मैनी वन सर, मैनी। मैनी वन होना चाहिए। तो अगर इसमें वो टेस्ट लगाएं, ये तो चलो तुमने वैसे बता दिया, अगर इसमें टेस्ट लगाएं हॉरिजॉन्टल लाइन वाला जो मैंने ऊपर बताया था, लाइन तो खींच के, तो सर ये हॉरिजॉन्टल, एक लाइन में बीच में से पास हो जाता है ना, तो बहुत सारे पॉइंट में कट करेगा। हाँ वो रेड कलर की लाइन के ऊपर से पास हो जाएगा अगर, क्यों तो इसके ऊपर सर से, ऐसे पास ना, हो ऐसे कह रहे हो ना, ऐसा यस कह रहे हो यस ना? यस सर। हाँ तो बहुत सारे पॉइंट से पास करेगा, तो फिर ये तो 1 1 की निशानी नहीं है, 1 1 में ऐसा नहीं होता। तो इफ ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन बी हैज अ प्री इमेज इन डोमेन ए, देन द फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू। ऑन टू का मतलब सर्जेक्शन होता है, कि अगर हर एलिमेंट बी का उसकी प्री इमेज होनी चाहिए ए के अंदर। मतलब जैसे आप मिरर के सामने जाते हैं तैयार होने के लिए, तो मिरर के अंदर इमेज बनती है आपकी। तो मिरर के अंदर जो इमेज बनती है, तो वो जो इमेज बनी है वो इमेज आपकी वो बी सेट के अंदर बन रही है, राइट। और आप जहाँ खड़े हैं, ऑफ कोर्स आप तो बाहर खड़े हैं, तो आप कैपिटल ए सेट के अंदर हैं, आप डोमेन है, आप इनपुट हैं, आउटपुट आपकी इमेज है। तो कभी ऐसा होता है कि इमेज बन जाए और आगे कोई खड़ा ही ना हो आईने के आगे, कभी होता है ऐसा? ऐसा कभी नहीं होता, राइट। रियल लाइफ में नहीं होता, हॉरर मूवीज में होता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट रियल लाइफ, राइट। सो दिस इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट, if you are able to see some image in inside mirror, it's not possible that the object is absent. Or similarly, if you walk along any road, then you always see your shadow on the road, and it's not possible that there is a shadow on the road but there is no one walking on the street. ऐसा मुमकिन नहीं है कि अगर कोई चल ही नहीं रहा है तो फिर शेडो किसकी बनेगी? तो शेडो है तो ये पक्का है कि जरूर कोई आदमी वहां पे खड़ा है। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि शेडो तो बन जाए और आदमी ना हो। आई एम टॉकिंग अबाउट रियल लाइफ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हॉरर मूवीज, राइट। Okay, so this shadow making process, if you consider the set of humans, the set capital A, and if you consider this set of shadows, uh, capital B, then the function, a function from A to B, right? The procedure of having shadow on the ground is actually an onto function. It's not possible that there's a shadow on the ground and there's no person walking on the street या कहीं पे भी, राइट। सो इसे कहते हैं ऑन टू फंक्शन। और जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता वो इन टू होता है, ठीक है।
तो on to function का example, this is very important, an example of an on to function. You can see that the axis, this is x axis, y axis, yeah, and the graph of 10x, 10x का ग्राफ सबको मालूम होना चाहिए. 10 0 is 0, 10 90 is infinity, right? 10 180 is again uh, 0, and 10 3 pi by 2, that is minus infinity, right? Or you can say that 10 minus 90 is minus infinity. So that's why you can see that this is a graph of 10x. It passes through the origin and it goes like this. This is parallel to, always parallel to this dotted line, right? And I hope you know about this scenario, why it doesn't touches this asymptote. You call it asymptote. Asymptote is a hypothetical line beyond which a curve never goes, राइट? एसिम्प्टोट उस चीज को कहते हैं, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन को, होती नहीं है पर महसूस करनी पड़ती है, जिसको कर्व कभी क्रॉस न करे. दिस रेड कलर ग्राफ cannot cross this dotted line. It's not possible that it will go beyond there. No, that's not possible. It would always go like this, always parallel to this asymptote, right? So these are the two vertical asymptotes of 10x, beyond which the graph of this red color graph will not go, right? तो हमेशा parallel चलते रहेंगे ऐसे करके, parallel like this, and this will go like this, parallel. They will never meet actually, right? And again, और ऐसा कहना चाहिए कि they will meet at infinity. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. This is optimistic approach. कभी ना मिलना ऐसा नहीं कहते, उम्मीद रखते हैं कि कभी ना कभी तो मिलेंगे. जैसे हम भी आपसे कभी ना कभी बिछड़ेंगे तो फिर उम्मीद जताएंगे कि ज़िंदगी में कभी ना कभी मिलना ज़रूर होगा. हालांकि मिलेंगे ऐसा मुश्किल है कि मिल पाएंगे, लेकिन यही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है. इन्फिनिटी के साथ भी यही अप्रोच रखी जाती है कि कभी ना कभी तो ये जो कर्व है, रेड कलर का कर्व है, ये कभी ना कभी तो इस लाइन से मिलेगा ही. तो ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, हालांकि वो मिलेगा नहीं कभी, राइट? ओके नाउ, और हाँ, ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है, ऑफ कोर्स ये मैं फिर से गुरमनप्रीत अरोड़ा से पूछना चाहूंगा, क्या ये 1 1 है? इफ यू सी द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, इज इट 1 1? गुरमनप्रीत अरोड़ा? यस सर. हाँ, क्योंकि हर कोई भी ओरिजेंटल आप लाइन बनाएंगे दैट विल कट दिस ग्राफ एट कितना, एट मोस्ट 1 पॉइंट. वेरी गुड, ज़्यादा, वेरी गुड गुरमनप्रीत, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पॉइंट पे काटेगी. और क्या ये फंक्शन ऑन टू भी है? यस सर. रीजन? मतलब ये एटलीस्ट एक हाँ, पॉइंट पर भी काटेगी. एक पॉइंट तो काटेगी काटेगी, तो दोनों बातें सच हो रही है. तो दिस फंक्शन इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ अ बाइजेक्शन. आपने वर्ड सुना होगा बाइजेक्शन. बाइजेक्शन वो फंक्शन होता है जो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, राइट? तो ये खूबसूरत एग्जांपल है जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है. तो क्या गुरमनप्रीत अरोड़ा, ये वाला एग्जांपल भी 1 1 ऑन टू है? इज दिस एग्जांपल 1 1 ऑन टू, राइट? कैन वी से दैट दिस इज 1 1 on 2? If you check this graph from 1 1 on to for 1 1 on to test, it will certainly qualify the criteria of 1 1 as well as on 2. So this is an example of बाइजेक्शन उसी को कहते हैं जो 1 1 भी होता है और on 2 भी होता है. तो कुछ एग्जांपल्स आप मुझे बता सकते हैं कि 1 1 और on 2 फंक्शन इज जैसे सर इक्वल टू आप y x, इक्वल है टू ना? एक्स क्यूब डाल बनाने लगे थे. एक्स क्यूब भी बन जाएगा. हाँ, सही कह रहे हो तुम. तो एक काम करते हैं, ये तो सारे रियल से रियल होंगे, लिखने पड़ेंगे ना कहाँ से कहाँ में. f अगर है आर से आर पे, ये भी तो बताना पड़ेगा कि डोमेन कौन है, कोडोमेन कौन है, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, या फिर हो एक्स क्यूब, है ना? ये भी चलेगा, यस एक्स टू सर. द पावर 5 भी चलेगा, एटसेट्रा. ये सारे वो है. और अगर मैं बोलूँ कि एक जी फंक्शन ले लूँ, वो ले लूँ मैं ये वाला ले लेते हैं. ये दिख रहा है आपको, कहाँ से कहाँ, क्या डोमेन है इसका? गुरमनप्रीत डोमेन क्या है इसका, बताना इस फंक्शन का. इनपुट, सर इसका इनपुट इनपुट हमेशा एक्स एक्सिस में छुपा होता है, ठीक है 0 जी. कहाँ से कहाँ तक इनपुट, इतना सा विंडो तो है यहाँ से यहाँ तक, माइनस 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 पाई बाय 2 से लेके कहाँ तक, 5/2. पाई बाय 2. ओपन ब्रैकेट लगाऊंगा, ऐसे वाले ब्रैकेट लगाऊंगा कि ऐसे वाले लगाऊंगा? इसमें ओपन लगेंगे सर. ओपन लगेंगे. क्यों क्लोज को नहीं लगेंगे? सर इंक्लूड नहीं है ना. इंक्लूड नहीं है तो क्यों नहीं करते? इंक्लूड कर देंगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा या कुछ ये प्रॉब्लम हो जाएगी? टच नहीं कर रहा ना सर, ये पैरेलल जा रहा अच्छा, ऐसा इसलिए करो.
चलो ठीक है, कहाँ से कहाँ तक होगा, रेंज बताना है इसकी, कहाँ से कहाँ तक है ये? -∞ to ∞. वाह, उसको रियल लाइन आर लिख दो, -∞ to ∞ को आर भी तो लिख सकते हैं, Yes. क्यों? हाँ वही तो लिखते हैं, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 10x, राइट। तो दो एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए जो बाइजेक्शन है ना। द ईथ रिमार्क, ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्शन होता है तो जरूर उसको इन्वर्टिबल, उल्टा किया जा सकता है उसको, राइट, इन्वर्टिबल किया जा सकता है। और फिर वो जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो फिर बी से ए पे होगा, जबकि जो डायरेक्ट फंक्शन था वो ए टू बी था, इन्वर्स फंक्शन विल बी फ्रॉम बी टू ए, राइट, एंड दैट ऑलवेज एग्जिस्ट, एंड दैट इज ऑल्सो बाइजेक्शन, वो भी अपने आप में 1 1 on 2 होता है। लेकिन इन्वर्टिबल फंक्शन तभी हो पाता है जब कोई फंक्शन क्या हो, बाइजेक्शन हो, बाइजेक्शन नहीं होगा तो फिर वो इन्वर्टिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मेरा आपसे सवाल है, किससे सवाल करें, मिस्टर जय, इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इन्वर्टिबल फंक्शन? fx is equal to x cube, an invertible function, yes or no? Yes. Okay, now my next question is fx is equal to sine x? I should write it here, fx is equal to sine x, and it is from r to r. Is it invertible? Tell me the answer first. Is it invertible, sine x function? बहुत हेल्प करते हैं ग्राफ, नो, राइट। जय ने जो है बिल्कुल सही आंसर बता दिया है, पूरी रियल लाइन में इन्वर्टिबल नहीं है। बट इफ आई स्क्वीज द डोमेन लाइक दिस, आई विल से दैट, इसको मैं कर देता हूँ 0 to पाई, like this, okay, like this. Now is it 1 1 and on 2, or can we say that this is about the graph of this function? ग्राफ कैसा होता है इसका ग्राफ? sin 0 is 0, this is 0, this is 90, this is pi. Now you are wrong, check. हर्षित ने भी गलत आंसर दिया और किसी और ने भी गलत आंसर दिया। If you draw a horizontal line like this, it is cutting the points at 2 points. इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। अगर ये 1 1 ही नहीं है तो फिर ये इन्वर्टिबल कैसे होगा? या ये मैनी 1 है और ऑन 2 है। यस, हर्षित शर्मा ने सही आंसर दिया, तो ये इन्वर्टिबल नहीं होगा, राइट। तो ये क्लियर होना चाहिए। ग्राफ्स आर वेरी यूजफुल, अदरवाइज आप शायद टाइम ले लें इसको चेक करने में। ग्राफ्स आर इम्पॉर्टेंट, राइट। Okay, now we'll proceed to our next remark. It's fth remark, and it says that if f is a function from a to b, g is a function from b to c, then the composition of f and g is given by GOF, and that is a function from a to c, right? And this is how GOF fx is defined. GOFx is equal to g within bracket. Will be telling me the reason why it's GOF rather than FOG, because it looks like it should be FOG, because f is a function, it is set a, this is set b, this is set c, and f is a function from a to b. Here you have f, and g is a function from b to c. Then if you want a direct function from here to here, then what will be that? Why is it GOF? Why is it GOF? Why? Though it looks like it should be FOG. Who will answer this Sir, question? because And F से आउटपुट है और G से uh, ज़्यादा, F से इनपुट है और G की आउटपुट है, ये हो गया। F की इनपुट और G की आउटपुट है, उल्टा बोल रहे हो। ये बोलो, ये इनके बीच में कौन है कॉमन? कॉमन सेट कौन सा है इनके बीच में? B वाला। B वाला। B किसका आउटपुट है? B वही A का आउटपुट है और F A का का क्या? F का आउटपुट है, हाँ। आउटपुट है और G का इनपुट। और ठीक है, तो जो F पहले कौन निकलेगा? पहले F का आउटपुट निकलेगा तभी तो G में जाएगा। क्यों? जब आप वो बनाते हो, कोई भी चीज बनाते हो, तो पहले जो आउटपुट पहले वाले का आता है तभी तो दूसरे वाले में जाता है वो। क्यों? जैसे कि आप भी आउटपुट हो, अभी आप अभी आउटपुट हो उसके, जो 12th में जो एग्जाम हुआ था, इंटरमीडिएट एग्जाम हुआ था, आप उसके आउटपुट हो। क्यों? और आप किसके इनपुट हो? बीटेक के इनपुट हो। ओके, तो जो 12th करके निकलेगा वही तो बीटेक में एंट्री लेगा। यस और नो? यस सर। हाँ, तो पहले कौन होगा? पहले 12th होगा कि पहले बीटेक करना पड़ेगा?
ये 12th होगा। 12th होगा, तो ये 12th नहीं होगा, पहले ये 12th हो गया ना। इसने जो आउटपुट दिया वो बीटेक के अंदर जाएगा, अदरवाइज नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो पहले एफ को आना पड़ेगा। और पहले का मतलब जो जो ऐसे, ये बताओ इनमें से कौन पहले होता है? एफ ओ जी में ये पहला होता है कि ये पहला होता है? पहला किसे माना जाता है, इसको कि इसको? जी को सर। जी को। इसे पहला इसलिए माना जाता है क्योंकि हम लोग एक्स को यहाँ लिखते हैं। हो सकता है कि चाइना में, मुझे नहीं पता, चाइना में हो सकता है, चाइना में एक्स को यहाँ लिखते हो, यहाँ लिखते हो, तो फिर पहला कौन माना जाएगा? एफ माना जाएगा। और हम तो ये नोटेशन फॉलो करते हैं, तो हम इसको पहले मानते हैं जिसके नजदीक एक्स आता है। तो आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ये सारा खेल नोटेशन का है। चलो जी, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो रीजन आपको पता चल गया कैसे निकालते हैं एफओजी, ये सबको आता है, नीचे क्वेश्चन में भी हम सीखेंगे अभी। ठीक है, अब जो ये अगला रिमार्क लिखा है जी वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला रिमार्क है। और अगर ये आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात होगी, हालांकि ये लिखा हुआ भी है मैंने नीचे। ये रिमार्क कह रहा है कि अगर एफ ओ जी का इन्वर्स निकालेंगे तो वो उल्टा हो जाता है, जी इन्वर्स और एफ इन्वर्स। तो क्यों हो जाता है उल्टा? गुरबनप्रीत थोड़ा इसका आंसर बताएंगे? फिर आपने वो सॉक्स वाली एग्जांपल दी थी, वो पता नहीं है। वही बता दो। चलो, कोई नया अगर बना पा रहे हो तुम एग्जाम्पल तो तुम भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि सॉक्स वाला ही बताना, जो सर ने बता रखा है वही बताना है। कुछ और भी तो बनाया होगा तुमने वो सोचने के बाद, कुछ और भी सोच लो एग्जाम्पल। सोचिए। सोच लिया? नहीं। हम्म। हम्म, सोच लो सोच लो। हम्म, जैसे सर, हम्म। हाँ, बस एग्जांपल तो यही बताता हूँ। जैसे आपने कहा था, जी। जैसे कहीं जाना हो, पहले सॉक्स हम्म। डालेंगे फिर शूज डालेंगे। हम्म। तो हम्म। अ, मतलब ये एफ ऑफ जी हो गया। और जी, जी क्या है? जी नहीं, जी क्या चीज है? जी, जी क्या बना, जी कौन सा फंक्शन है जो शूज पहनाता है? शूज, ठीक और है। एफ क्या है मान लो? एफ सॉक्स पहनाता है। तो सॉक्स। तो मॉर्निंग में, मॉर्निंग में क्या क्या लगाओगे आप? जीओ एफ लगाओगे कि एफ ओ जी लगाओगे मॉर्निंग में जब जाओगे कहीं? ओ सर, जी ओ एफ पे जैसे पहले सॉक्स डाली और फिर हम्म। शूज डाले। हम्म। और ठीक है, जैसे जैसे अब तुम तैयार होके पहुंच गए गुरुद्वारे में, गुरुद्वारे के बाहर गए तुम, उतारोगे अपने ये, जाहिर सी बात है अंदर तो ले जाओगे नहीं, तो क्या लगाओगे वहां पे? वहाँ पे सर एफ ऑफ जी लाएंगे, पहले शूज उतारेंगे फिर सॉक्स तो वो उतारेंगे। उतारेंगे में तो एफ तो पहनाने का था, जी भी पहनाने का था, उतारने का तो इनवर्स लगेगा। तो सर उतारने के लिए तो उतार, इनवर्स। हाँ फिर इसका हाँ तो इन्वर्स हो जाएगा, जी ऑफ एफ का इन्वर्स इन्वर्स हो करना जाएगा। पड़ेगा, हाँ इन्वर्स। और हम्म। एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स। ये तो पहले ये करेंगे, मतलब ये क्या था, ये क्या चीज थी? जी इनवर्स क्या होना चाहिए? जी इन्वर्स शूज उतारेंगे। उतारने का होना चाहिए, बस ठीक है फिर। तो अब तुम जब भी जाओगे कहीं तो ये बोलोगे कि मैं एफ ओ जी लगा रहा हूँ, जब उतारोगे तो जी इनवर्स, एफ इनवर्स लगा रहा हूँ, ऐसे ही बात करनी है तुम्हें। ठीक है, यस। हाँ। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। एक फंक्शन है जो रियल से रियल पे है, डोमेन भी उसका रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। ऐसा है कोई फंक्शन होगा कोई, ये लिख के दिया है फंक्शन, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई। और जी भी फंक्शन है जिसके डोमेन भी रियल लाइन है और कोडोमेन भी रियल लाइन है। ठीक है भाई, और वो दे रखा है 2x+3। तो एक बार आपको एफ ओ जी निकालना है, एक बार आपको जी एफ निकालना है, तो ये निकालना सिखा रहे हैं। सबसे पहले तो हम एफ ओ जी निकाल रहे हैं, ये आर से आर पे फंक्शन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देते, ठीक है। फिर एफ ओ जी आर से आर में फंक्शन है, तो एफ ओ जी एक्स जब मैं लिखूंगा तो ये बताओ गुरविंदर और गुरमनप्रीत की जो एक्स है ये कौन से वाले आर में है? इस वाले आर में है कि इस वाले आर में से निकाला आपने? पहले वाले आर में से, बाद वाले आर में से? गुरमनप्रीत। सर ये जी एक्स, तो सेकंड वाले आर्म में ये क्या है? एक्स इनपुट है कि आउटपुट है? ये सर आउटपुट होगा उसका जी का ना। आउटपुट, जी का आउटपुट होगा। जी का आउटपुट, अभी तो आउटपुट तो आउटपुट कैसे होगा? अच्छा चलो ये यहाँ पे बात करते हैं, रुक जाओ। चलो यहाँ देखो, जीओ एफ लिखा हुआ। यस सर। जी क्या था? शूज वाला पहनाने का। एफ क्या था? सॉक्स पहनाने का। सही बात है। तो ये क्या था? सॉक्स के लिए, सॉक्स पहनाने का, ये शूज पहनाने का। क्या क्या लेगा आउटपुट? यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क क्या डालोगे इसमें? एक्स। एक्स क्या होगा सोचो, क्या होगा एक्स? जब सॉक्स पहनाओगे तो किस पे पहनाते हो सॉक्स? आदमी के पैर को। हाथ में पहनाते हो? हाँ पैर को पहनाते हो, तो ये एक्स होगा, ये पैर होगा तुम्हारा। इनपुट होगा ये, इनपुट होता है पैर या आउटपुट होता है पैर? इनपुट।
तो आउटपुट क्या होता है फिर, फाइनल आउटपुट? फाइनल उतारने को ही होगा, पैर से अरे यार उतारने। कमाल की बात हो पूरे, अरे कमाल के आदमी हो। पहले तुमने सॉक, ये तुमने पैर, ये तुम्हारा पैर है ना, ये तुमने इसमें वो बना दिया सॉक्स, फिर जो सॉक्स ऐसे पहनने के बाद फिर शूज पहना दिया, तो फाइनल आउटपुट क्या हुआ? फाइनल आउटपुट हो गया ये आपका शूज पहना वाला, शूज पैर। पहना वाला, हाँ यस पैर हो गया जिसमें शूज चढ़ा हुआ है, वो आउटपुट फाइनल। आया समझ में? यस तो अब ये बताओ कि यहाँ पे एक्स, एक्स इनपुट होता है हमेशा, ये जो एक्स होगा ना ये वाला, ये इनपुट है, ठीक है। चलो, इसका मतलब होता है जी एक्स, ऐसे लिखते हैं एफ जी एक्स, ये डेफिनेशन में बता रखा है ये, ठीक है। चलो जी एक्स की वैल्यू कितनी है? 2x+3। 2x+3 है। तो अभी एफ के लिए कौन बन गया, एफ के लिए क्या बन गया, इनपुट बन गया ना। यस सर। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लेते हैं, वाई। वाई मान लेते हैं, ठीक है। अब ये बन गया एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई, एफ एक्स कितना है, x² + 1, तो फिर एफ वाई कितना होना चाहिए? 2x उसकी वैल्यू बदल देंगे हाँ x+। मतलब y² + 1 उसकी वैल्यू डाल दी, ठीक है। फिर स्क्वायर खोलना तुम्हें आता है, फिर ये आंसर आ जाएगा इसका, राइट। ऐसे ही जो है ये निकालना है जी ओ एफ एक्स। अच्छा, जो जी ओ एफ वाला फंक्शन है, ये भी एक तरीके से वहीं से वहीं है, जी ओ एफ जो है वो भी आर से आर पे ही है, ठीक है। ये जो एक्स तुमने उठाया कौन से वाले आर से उठाया, पहले वाले से कि दूसरे वाले से? ये पहले वाले से इनपुट है ना। पहले वाले से उठाया, ठीक है। तो पहले वाले से उठाया तो अच्छी बात है। तो फिर इसको ऐसे लिखेंगे, जी ओ एफ एक्स को जी एफ एक्स लिखेंगे, तो सब जानते हैं। एफ एक्स की वैल्यू डाल देंगे, एफ एक्स की वैल्यू x² + 1 है, वो भी डाल दिया आपने। थोड़ी देर के लिए इसको y मान लो, थोड़ी देर के लिए मानना, ज़्यादा देर के लिए नहीं। तो जी वाई हो जाएगा, जी वाई कितना होगा, अगर जी एक्स 2x+3 है तो व्हाट शुड बी जी वाई, 2y+3, यस और टू नो? वाई। यस सर। ओके, वाई तो की। y की वैल्यू वापस रख दिया आपने, फिर मल्टीप्लाई करके निकाल लिया आपने आंसर। फिर आपने देखा कि जी ओ एफ एक्स तो कुछ और आ रहा है, एफ ओ जी एक्स कुछ और आ रहा है, और बात भी सही है। एफ ओ जी अलग चीज़ होती है, जी ओ एफ अलग चीज़ होती है। अगर आप वो शूज़ और सॉक्स के एग्जाम्पल में जब आपने जी ओ एफ लगाया तो वो आया आपका वो वाला, मतलब वो वाला पैर जो जिसमें आपने शू पहन रखा था, और गलती से किसी बच्चे ने एफ ओ जी लगा दिया, तो फिर पहले शूज़ आ जाएंगे, उसके ऊपर वो जुराब पहन लेगा, तो वो गलत हो जाएगा, राइट, वो कुछ और हो जाएगा। Okay. Now, second question is prove that a function, this function is an invertible function. ये साबित करना है कि invertible function है, और ये आप क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं। किसी फंक्शन को invertible साबित करने के लिए आपको साबित करना पड़ता है कि वो 1 1 आए, और फिर आपको साबित करना है कि वो ऑन टू आए। 1 1 साबित करने का तरीका ये होता है कि आप मान लेते हैं कि दो इमेजेस बराबर हैं, दो इमेजेस बराबर हैं, और साबित करना पड़ता है कि दो इमेजेस तभी बराबर आ पाएंगी जब उन दोनों के इनपुट बराबर होंगे। यानी आउटपुट अगर बराबर आप मानते हैं तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि वाकई में इनपुट भी बराबर ही थे, ठीक है। तो प्रूफ बड़ा आसान है, ये आपने कई बार कही है क्वेश्चंस पहले भी। f(x1) = f(x2) से स्टार्ट करिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करिए, और फाइनली आ जाएगा x1 = x2। अगर आप ऐसा कर पाएँ तो साबित हो जाएगा कि f एक 1 1 फंक्शन है, राइट। Similarly, in order to prove that a function is onto, you have to start with f(x) = y, where this y is actually output, and this belongs to this second set, codomain set, ये y इसको belong करता है, right. I should write here that where y belongs to R, where y belongs to R, and this R is actually codomain वाला R है, बाद वाला R है, this one, right, codomain R, ये ऐसा मानना पड़ेगा, right. So fx का वैल्यू आपने पुट किया 3x + 5, that is equal to y, you calculated x in terms of y. Now you are saying that clearly for all values of y belonging to R, आप जानते हैं कि जितने भी y हैं सब वो आर के अंदर है। आर कौन सा वाला आर, कोड डोमेन वाले आर के अंदर है। तो अगर y एक रियल नंबर है तो जाहिर सी बात है y-5 भी एक रियल नंबर होगा, क्योंकि किसी भी रियल नंबर से 5 को माइनस कर देने से वो रियल ही रहता है। इनफैक्ट किसी भी रियल नंबर को 3 से डिवाइड करने पे भी वो रियल ही रहता है। इसका मतलब y-5/3 भी एक रियल नंबर होगा। तो ये कोड डोमेन को जरूर बिलोंग करेगा, ये गारंटी है, क्योंकि हर रियल नंबर कोड डोमेन को बिलोंग कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि एवरी रियल, दिस इज अ रियल नंबर, एंड सिंस इट्स अ रियल नंबर इट विल ऑलवेज बिलोंग टू कोड डोमेन। इसका मतलब है कि ये जो x है, ये जो x है, x दरअसल y-5/3 के इक्वल था। इसका मतलब वो भी रियल लाइन को बिलोंग करेगा, राइट। इससे साबित हो गया कि फॉर एवरी इमेज, फॉर एवरी शेडो यू सी ऑन द ग्राउंड, देयर विल बी सम पर्सन बिलोंगिंग
बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ ह्यूमंस। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि जो शेडो बनने का जो 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 फंक्शन है, शेडो बनाने का फंक्शन है, वो अपने आप में ऑन टू फंक्शन होता है। ऐसी कोई शेडो नहीं होती है ग्राउंड में जिसके करस्पॉन्डिंग कोई ह्यूमन ना खड़ा हो वहां पे, ठीक है। तो फॉर एवरी शेडो, ये शेडो है, फॉर एवरी शेडो बिलोंगिंग टू द ग्राउंड, ग्राउंड इज योर कोडोमेन, राइट। एंड रेंज आपको पता है, रेंज इज अ सेट ऑफ शेडोज। हाँ, इसको आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं जैसे बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर्स ग्राउंड में खेल रहे हो। गुरबनप्रीत अरोड़ा, फुटबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? पता नहीं सर, मैं देखता नहीं। क्रिकेट 11। तो कितने खिलाड़ी होंगे एक समय पे ग्राउंड में 22 जब मैच चल रहा होगा? अच्छा, सारे के सारे होंगे? बैट्समैन तो दो ही होते हैं, ये सारे बैट्समैन एक साथ बैटिंग करते हैं सर। जब बैट्समैन मैच चल रहा होता 13। है। हाँ, तो कितने होंगे? 13। और वो कौन होंगे? एम्पायर फैसला कौन लेंगे? वो तो तुम गिन ही नहीं रहे हो। अपने खिलाड़ी नहीं कहा था। चलो ठीक है, नहीं ग्राउंड में जितने लोग हैं पूरे वो भी गिन लेते हैं, वो भी खिलाड़ी होते हैं वैसे रिटायर्ड। दो एम्पायर भी गिन लेते हैं। कितने कितने हो गए? 15। 15 हो गए। तो डोमेन का सेट में कितने लोग हो गए डोमेन में? 15 हो गए। 15 हो गए, ठीक है। डोमेन का सेट हो गया, कैपिटल है। कैपिटल बी जो सेट होगा ना, कैपिटल बी, वो कोडोमेन होगा। बताओ कोडोमेन क्या होगा इस एग्जांपल में? व्हाट विल बी कोडोमेन? अगर किसी और को भी पता है तो वो भी बता दीजिए चैट में। कोडोमेन क्या होगा इस एग्जांपल में? कोडोमेन सेम ही होगा सर। सेम ही होगा? ये क्या बात हुई सेम होगा? सेम ही शैडो होगा। बनाने का अच्छा, शैडो बनाने का फंक्शन क्या, इंसान से इंसान के ऊपर बनती है शैडो? तुम्हारी शैडो तुम्हारे ऊपर बनती है, कहाँ बनती है? शैडो तो साइड में ही बनेगी बस। साइड में बनेगी? अरे ग्राउंड में खेल रहे हैं, ग्राउंड ग्राउंड में में। बनेगी? हाँ, तो ग्राउंड ग्राउंड में। होगा, जो बी होगा वो ग्राउंड होगा। ए तो हो गए, एक तो सेट हो गया उनका प्लेयर्स, वो प्लेयर 15 हो गए थे ना, 15 प्लेयर्स। यस सर। प्लेयर्स प्लस एम्पायर, एम्पायर भी आ गया इसमें, 15 हो गए टोटल वो। और जो बी सेट होगा वो पूरा ग्राउंड होगा, वो बी सेट ग्राउंड होगा। और जो एफ ऑफ ए होगा, एफ ऑफ ए का मतलब रेंज जिसे कहते हैं, रेंज ऑफ एफ भी कहते हैं इसको, चाहिए को चाहिए। रेंज ऑफ एफ क्या होगा? कितने कितने होंगे उसके अंदर? कितने एलिमेंट आएंगे रेंज एफ के अंदर, जल्दी बताओ। 15 ही आएंगे। 15 ही आएंगे। शेडो, एक शेडो, दो शेडो, तीन शेडो। ये वन वन फंक्शन होगा कि मैनी वन फंक्शन होगा? ये मैंने वन। बहुत बढ़िया, मैनी वन फंक्शन। दो आदमी की एक शेडो, एक ही शेडो बनेगी? एक आदमी की एक है? ही शैडो। तो फिर मैनी वन क्यों बोला? 1 वन वन ऑन टू होगा कि इन टू होगा? ऑन टू। ऑन टू होगा। पक्का? हाँ जी, हाँ जी सर। हरी, जो भी शेडो होगी उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई होगा वहां पे, प्लेयर होगा चाहे एम्पायर होगा, ठीक है। ओके, यस सर। ठीक है। तो वही कहना चाह रहे हैं कि हर जो शेडो बनेगी, जो भी शेडो बनेगी कोडोमेन में, वो उससे सोचना तुम ग्राउंड वाले एग्जांपल से, जो भी शेडो बन रही है मैदान में, जो भी हो शेडो, वो पक्का एक ना एक आदमी जरूर होगा डोमेन में, वो खिलाड़ी होगा चाहे एम्पायर होगा। इज इट फाइन? यस। यस सर। तो इसका मतलब ऑन टू भी प्रूफ हो गया। ऑन टू प्रूफ हो गया तो बाइजेक्शन हो गया, क्योंकि वन वन ऑन टू जो होते हैं बाइजेक्शन होते हैं, और बाइजेक्शन होते हैं वो हमेशा इन्वर्टिबल होते हैं। इन्वर्टिबल का मतलब समझते हो? यस सर। इन्वर्टिबल फंक्शन उल्टा कर सकते हैं, उल्टे कर सकते हैं मतलब इमेज पता होंगी तो इमेज से आदमी। उल्टा आदमी पता चल जाएगा। तो होता है क्या ऐसा कहीं कि इमेज पता हो और आदमी पकड़ा जाए, चोर पकड़ा जाए, चोर की छाया देख ली पुलिस ने और चोर को पकड़ लिया, ऐसा हुआ कभी आज तक? हुआ होगा। परछाई, वो अरे हुआ होगा। चोर की परछाई देख के तो नहीं पकड़ते, लेकिन फिंगरप्रिंट देख के तो पकड़ते हैं। फिंगरप्रिंट भी वन वन और टू होते हैं नहीं होते हैं नहीं, फिंगरप्रिंट्स? फिंगरप्रिंट वाले क्यों? होंगे। होते हैं, हर आदमी के यूनिक होते हैं फिंगरप्रिंट्स, डीएनए, यस सर। है ना, उससे भी तो पकड़े जाते हैं आजकल। हाँ जी। हाँ, तो हर आदमी का यूनिक होता है वो, तो इसीलिए अगर आपको डीएनए पता चल गया तो फिर मुजरिम जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है। फिंगरप्रिंट पता चल गया तो उससे भी मुजरिम पकड़ा जाएगा। तो ये एक तरीके से इन्वर्टिबल फंक्शन की पहचान है। जो जो एक क्राइम इन्वेस्टिगेटर होते हैं, जो एक क्राइम पुलिस होती है, तो वो जो है वो इन्वर्टिबल फंक्शन लगाती है, ऐसा समझो आप उसको, ठीक है। यस सर। हम्म।